है। अवामी स्कीमात के लिए जारी किया गया फंड अवाम की फलाह के लिए खर्च करना सरकारी ओहदेदारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन श्रीकाकुलम जिले के गारा मंडल के सतीवाड़ा पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमास्टर ने ही रोजगार जमानत की स्कीम के तहत सरकारी रकम गबन कर दी। पोस्टमास्टर से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि पोस्टमास्टर ने 15 लाख रुपये जाती तौर पर इस्तेमाल करने का तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया है। इसके अलावा 4.5 लाख से जायद रकम महकमे को लौटाने का भी दावा किया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख रुपये से जायद का स्कैम भी हो सकता है। 12,237 రూపాయలు పేమెంట్ అయింది వేసేసారు. అదేం చేశాడంటే ఆ ఒకటిని 7 కింద చిన్న గీత పెట్టి 7 కింద మార్చారు. అంటే 60,000 రూపాయలు అక్కడ. ఇంకొక దీనిలో 18,080 అయింది ఇంకో మిషన్లో. అది కూడా ఒకటిని 7 కింద మార్చారు. ఈ కరెక్షన్స్ ఉండవు. వీళ్ళు ఇమీడియట్లీగా మనకేంటంటే పోర్టల్లో తెలిసిపోతుంది ఎంతని. పోర్టల్లో తెలిసిపోతే ఇమీడియట్లీగా అది చెక్ చేస్తే 1,20,000 రూపాయలు డిఫరెన్స్. అది వెంటనే ఏం చేసామంటే ఇమీడియట్లీగా ఎంక్వైరీ చేయమని ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇద్దరికి ఆర్డర్ వేయడం జరిగింది. అంటే రియల్ ఎస్టేట్స్ చేశానని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు. రియల్ ఎస్టేట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు తీసి చేశాను. నేను 10-15 లక్షల వరకు చేశానని చెప్పి 4,63,350 రూపాయలు ఆయన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ తెచ్చి పే చేశాను. वाइस शर्मिला की ताज़ियती यात्रा के दूसरे मरहले के आज वरंगल में इख्तिताम अमल में आया। शर्मिला ने वरंगल के मेगुरापल्ली और बोपालापल्ली में उन अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की जो वायएसआर की मौत के सदमे से फौत हो गए थे। शर्मिला ने ताज़ियती मरहले के दूसरे मरहले में जुमला 31 अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। शर्मिला वरंगल में 21 और 22 सितंबर को तीसरे मरहले की ताज़ियती यात्रा करेंगी, जबकि वो 23 सितंबर को करीमनगर में ताज़ियती यात्रा करेंगी। వరంగల్ జిల్లాలో ఈ రెండవ దఫా పరామర్శ ఈరోజు 31 పరామర్శల తర్వాత పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికి వరంగల్ జిల్లాలో 73 పరామర్శలు ఉంటే 62 పరామర్శలు ఇప్పటికి అయిపోయినాయి. ఇంకా 11 పరామర్శలు, భూపాలపల్లిలో 1 పరామర్శ, అదేవిధంగా ములుగు కాన్స్టిట్యున్సీలో 10 పరామర్శలు ఉంటవి. వాటిని ఈ నెల 21వ తారీఖు ఉదయం ములుగు కాన్స్టిట్యున్సీతో ప్రారంభించి మొదటి రోజు 5 పరామర్శలు చేసుకొని 22వ తారీఖు 6 పరామర్శలు కంప్లీట్ చేసుకొని భూపాలపల్లిలో ఆఖరి పరామర్శ అయిన తర్వాత కరీంనగర్ జిల్లాలో 3 రోజుల పరామర్శ అక్కడ ఉంటుంది. 6 సంవత్సరాలైన నిన్న సెప్టెంబర్ 2కు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగతులై 6 సంవత్సరాలైన ప్రజల గుండెల్లో ఆత్మీయత, ప్రజల గుండెల్లో నిలిచి ఉన్నాడంటే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను తెలుపుకుంటూ మీ అందరూ సహకరించేందుకు మీకు అందరికీ కూడా ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से वाटर डिस्ट्रीब्यूटर कमेटियों में एक तरफा नामजदगियां करने पर वायएसआर कांग्रेस ने एहतजाज किया। मशरकी गोदावरी में एहतजाजी वायएसआर कांग्रेस कायदीन से तेलुगुदेशम कायदीन धक्कमपेल पर उतर आए। इंतखाबात में वायएसआर कांग्रेस के हिस्सा लेने के डर से तेलुगुदेशम कायदीन एक तरफा इंतखाब न होने की सूरत में अपोजिशन कायदीन से उलझ पड़े। हैदराबाद में एक और ड्रग गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ी गई गैंग शहर से एफिड्रिन नामी ड्रग को दूर दराज इलाकों को मुंतकिल कर रही थी। चेलापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर रेड्डी, मल्लेश्वर राव और वेंकटेश्वरलू की जानिब से ड्रग्स की मुंतकिली की खबर पर महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने धावा बोला और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 150 किलो एफिड्रिन पाउडर जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि इस ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपये तक हो सकती है। దీన్ని రేడ్ చేయగా ఈ మల్లేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి, మచిలీపట్నం చెందిన వ్యక్తి, అతను ఇక్కడ ఈ పౌడర్ని తయారు చేస్తున్నాడు. మొత్తం ఒక 155 కిలోల ఎఫిడ్రిన్ దొరికింది. దీన్ని తర్వాత బాంబే అండ్ ఇతర ప్రాంతాలకు సప్లై చేయడానికి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు. దీని ఇంకా ముందు ఎక్కడికి సప్లై ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయినారు, ఇంకా ఏమేమి చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయా, ఫార్మా యూనిట్స్ ఉన్నాయా అనే విషయంలో డీప్గా ప్రోబ్ చేయబోతున్నాము. ఇప్పుడు ఈ ముద్దాయిలని కోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మేము కస్టడీలో తీసుకుంటాము ఇంట్రాగేషన్లో తర్వాత విషయాలు.
पाकिस्तानी रेंजर्स के वफद ने आज मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। पाकिस्तानी रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल पंजाब जनरल उमर फारूकी ने अपने वफद के साथ राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल DK पाठक के साथ बातचीत की थी और सरहद पर कशीदगी खत्म करने से इत्तेफाक किया गया। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी वजूहात हों, सरहदों पर फायरिंग की पहल हिंदुस्तान नहीं करेगा। So far I can only say at this point of time that it was a meeting which was held in a very cordial and very constructive atmosphere, and we have resolved almost all our issues, and it was you can gauge the positivity of this meeting by the fact that meeting was originally scheduled to take place only yesterday, but to work out the nitty-gritty of the mechanism, we are meeting today also. So this is something very unusual. So, राजस्थान में ईद उल अजहा की तातील को खतरे के पेश नज़र मुस्लिम रहनुमाओं ने एहतजाज किया है। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने 24 सितंबर को जनसंघ के नजरिए साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी और खानगी कॉलेजों में तकारीब का इनेकाद करें और इस दिन रुखसत न दें। 24 सितंबर को ईद उल अजहा हो सकती है। ऐसे में मुसलमान हुकूमत की हिदायत को दस्तूर और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आज पहली बार नहीं आई है। इस बार सरकार ने आदेश जारी किया और आदेश जारी करके 24 और 25 सितंबर जो ईद उल जुहा के दिन हैं, यानी ईद उल जुहा 24 या 25 दोनों में से किसी दिन हो सकती है, उस दिन में आप छुट्टियां रद्द कर रहे हैं आदेश जारी करके, और वहां रक्तदान शिविर लगाने के लिए आप व्यवस्थाएं करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है और एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो राज्य की धारणा है हमारी और जो अधिकार हैं सबके, उसका एक हनन है। कर्मचारी के अधिकारों का भी इसमें हनन है। दूसरी तरफ हमको ये लगता है कि एक के बाद एक जिस तरह से इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं, इससे पहले भी आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार और योगा के नाम पर क्या कुछ किया गया। इससे पहले आपने देखा मशहूर खानुंदा मजीद मेमन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमतें पाबंदियों के निफाज के नए कल्चर को फरोग दे रहे हैं जो हिंदुस्तानी शहरियों की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर चीज़ के लिए पाबंदी आयद करना सेकुलरिज्म के लिए खतरे का बायस है। देखिए, ये बैन इतना बढ़ गया है कि आपके बोलने पर बैन, आपके काम करने पर बैन, आपके धंधा करने में बैन, आपके खाने पर बैन। तो किसी ने ठीक कहा कि शायद हिंदुस्तान एक बानिस्तान बन रहा है और अब तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फैली हैं राज्यों में या केंद्र में काम कर रही है, उनसे भारत में बसने वाले किसी व्यक्ति को, नागरिक को सांस लेने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। शायद वो दिन दूर नहीं। अमेरिका में 9/11 दहशतगर्दाना हमलों की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों को खिराज पेश किया जा रहा है और उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई जा रही है। दुआया इज्तिमात का इनेकाद हो रहा है। इस हमले में 2983 अफराद हलाक हुए थे। इस मौके पर लोकल TV की जानिब से महलूकीन के नामों को पढ़कर सुनाया जा रहा है। मेमोरियल और म्यूजियम के पास खिराज अकीदत के पेश नज़र फूल रखे जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुंबई ट्रेन धमाके केस में मुलजिमों को अदालत ने ठहराया कसूरवार। 13 में से 12 मुजरिमों को पीर को सुनाई जाएगी सजा। करपा में उर्दू यूनिवर्सिटी और हज हाउस की तामीर के वादे से तेलुगु देशम का इन्हिराफ। YSCP MLA अमजद बादशाह की भूख हड़ताल। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर में तेलुगु देशम संजीदा नहीं। पट्टिसीमा से रायलसीमा का ताल्लुक नहीं, उंडावली का बयान। पाकिस्तानी रेंजर्स ने की वजीर दाखिला से मुलाकात। राजनाथ सिंह ने कहा सरहदों पर फायरिंग की पहल हिंदुस्तान नहीं करेगा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी TV पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।